You're watching India Today with me, Nabila Jamal. A clear Pak imprint has now been found on the terror plot busted by Delhi Police Special Cell in coordination with UP ATS. Out of the 6 people arrested from Delhi, Uttar Pradesh and Rajasthan, 2 have now been trained by Pakistan's ISI. Delhi police has now got 14 days of police custody of all 6 accused. Cops claim that Pakistan-based brother of Dawood Ibrahim, Anis Ibrahim, hatched this entire conspiracy in collaboration with Pakistan's ISI. Samir, who is being said to be the sleeper cell operative of the underworld, was in fact looking after the arrangement of the IED, the weapons and grenades for Pakistan-operated terror module. He was having close contacts with Anis Ibrahim. The D-gang's existing transport route was used to transport the explosives, is what the cops have now established. The 2 have had to go to Pakistan to receive training. Osama and Zishan got special focus to carry out blasts in mass gatherings. The duo was given basic training to handle small firearms and AK-47. Meanwhile, hunt is on for suspect who is believed to have facilitated travel to Pakistan for Osama and Zishan. As per sources, he went underground after the Delhi police raids. Maharashtra Home Minister, meanwhile, Dilip Walse, has chaired a meeting with the Mumbai Police Commissioner and ATS chief, as one of the arrested accused belongs to Mumbai. Now, a crucial meeting of all states, ATS, has been called in on. In fact, the meeting will be held in Delhi on Friday to discuss this matter further. दो आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और इस तरह की किसी भी शैतानी, इस तरह की किसी भी आतंकी और इस तरह की किसी भी साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि वो लोग तो लगातार ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय एक मजबूत सरकार देश में है, इस तरह के कोई मंसूबे सफल नहीं होंगे। दिल्ली और देश के अलग अलग स्टेट से कुछ लोगों को आतंकवाद के केस में संशयित आरोपी करके अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरी घटना के बारे में आज राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, मुंबई पुलिस कमिश्नर, ATS चीफ और सारे अधिकारी इनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आवश्यक है वो आवश्यक इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो शेयर की जाए, कुछ बातें ऐसी है कि वो शेयर नहीं की जा सकती। Now, interrogation of 6 terrorists reveals that they were trained by the Pakistan Army and the ISI officers. More on that, Akshata explains to us. Let's cut across. Let's get you details of exactly how Pakistan ISI was plotting a terror plot in India and details of this terror module really that the police have put out. 2 of the terrorists who've been arrested were actually trained by Pakistan's ISI and Pakistan Army. The 2 accused, Osama and Zishan, reportedly went to Muscat and then travelled to Pakistan for terror training. They were joined by 15 Bangladeshi terror recruits. They were clearly part of this training to ensure that they can go ahead and spread terror in India. These recruits were kept in a farmhouse near the Gwadar port. As per the information put out by the Delhi Police Special Cell, they were trained in bomb making, in making IEDs, in using arms and ammunition, using AK-47s as well, which is why they were here in India to go ahead and plant IEDs in different parts of the country. Now, Pakistan's plot to target Uttar Pradesh polls has now been exposed. Police believes that at least 6 arrested terrorists were planning something quite big before Uttar Pradesh assembly elections and also were planning to carry out targeted killings and IED blasts across the country during the upcoming festive season, especially during the Navratras and Ram Leela gatherings. Out of the 6,
3 of the suspected terrorists were arrested from Uttar Pradesh itself, 2 from Delhi, 1 from Kota. The police have now recovered live IEDs, ammunition and explosives from various locations. प्रयागराज से हमने एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड आईईडी बरामद की और इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे और चूंकि इनके इस संबंध में ऑलरेडी एक केस दिल्ली स्पेशल सेल ने दर्ज किया हुआ था और मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण फिर इनको हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को के स्पेशल सेल को दिया है, जिसमें से 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और लोगों से वो अपने हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जब इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा तो हमारी एटीएस की टीम भी पूछताछ में शामिल रहेगी तथा उससे जो चीजें प्रकाश में आएंगी उसमें आगे की कार्रवाई भी हम लोग। All right, I'm going to cut across to Maharashtra. ATS Vineet Agarwal, who's addressing a presser on this, as one of the arrested member is from Mumbai. 9 तारखेला त्यांनी असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या, तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला. तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचे होता आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केलं आणि त्याने का अटक केला, त्याचे हातात त्याचे जवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे आणि आपली एटीएसची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे. I'll repeat it in English. Yes, please. Okay, so as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked the ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक किस तरह के इसका होगा और डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है, अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर, इसके आपकी जांच में क्या बात आई है? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है. ATS is fully in control and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि underworld का कोई control है. It is just that कि this case started from Delhi
और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट वट एवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. नहीं, आई कैनॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर, इस केस में जान मोहम्मद लिखी होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, कैसे किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा मुंबई पुलिस को. इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पे राजनीतिक आरोप भी लगे. ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है. और एटीएस से पहले गृहमंत्री ने पीसी किया. एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ये इज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड. सर, एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट पूछिए सर, एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार. Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar. But sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई. जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं. लेकिन सर कुछ तो 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसको कोई क्राइम का बैकग्राउंड है? 20 साल में नहीं आया जो पायधनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा, ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न, देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था. एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है. ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार. सर, ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दिस. पीएसआई का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको. सर, एक जो चीज आप कह रहे थे डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या ये उसके मामले रहे, तो डी गैंग से कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, आपको कैसे पता है डी गैंग से लिंक? नहीं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं. ये हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है. इंफॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है. उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है. उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है. आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू. कुछ बात हुई आपकी इस बारे में, मुंबई में कौन कौन सी जगह टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है. श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी. मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, कुछ लोकल मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है. ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया उसने मुंबई में रेकी करी. ये बात बिल्कुल. ADG Maharashtra, who's speaking of one of the suspect who's been arrested, he hails from Mumbai. He says that he was on their radar, but nothing significant enough that they had to crack down. They are not sure what exactly is the material that the Delhi police have found. They're going to be meeting with the Delhi police soon enough and discussing, and further will interrogate this man who's been arrested. This is exactly what Maharashtra Top Cop says with regards to one of the arrests that's made from Mumbai.
Now we're looking at a twist in the Abbajan row in Uttar Pradesh amid the tussle over Abbajan in poll-bound Uttar Pradesh. Farm leader Rakesh Tikait, spearheading the farm protest, has now called AIMIM chief Asaduddin Owaisi the Chacha Jan, or uncle of the BJP. Tikait was reacting on political scene in Uttar Pradesh and speaking on entry of Owaisi into Uttar Pradesh poll fray. In fact, Tikait took a jibe, said that Asaduddin Owaisi is the Chacha Jan of BJP and will ensure victory of Yogi Adityanath. Chief Minister Yogi's Abbajan jibe, ostensibly at SP Chief Akhilesh Yadav, has already heated up. In fact, India's politically most crucial state, Uttar Pradesh, now is looking at communal politics already taking center stage. We're looking at a political discourse here that seems to be hitting a new low with each passing day, with these kind of jibes coming to fore. बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, खुदा करे बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। वो ऐसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बाजान के बाद अब चाचा जान भी आ गए। अब चाचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बाजान साफ कर रहे हैं, ना चाचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। योगी जी के मित्र हैं अच्छे, उनकी योगी जी की एक जुगलबंदी चलती रहती है, नूरा कुश्ती चलती रहती है, दिखाने के लिए लड़ते रहते हैं, अंदर पीछे सेटिंग करते रहते हैं। नहीं, मुझे लगा कि आ गया चुनाव। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। Well, Rakesh Tikait remains defiant. Let's take a listen to his exclusive reaction with regards to AIMIM chief being called as Chacha Jan. कोई बाहर से हमारे प्रदेश में आया, किसी को फायदा देने के लिए आया, तो उसका मान सम्मान तो रहना चाहिए ना। कौन है चाचू जान? मतलब ये ओवैसी है, हैदराबाद से कहीं से आया, तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा। जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा, ये चाचू जान बीजेपी का ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं और आ जाएगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं इनको फायदा देने का काम करता है। Now, Prime Minister Modi's speech in Aligarh stuck to the themes of development and law and order, but Hindutva too is a poll plank for the BJP quite clearly. Chief Minister Yogi Adityanath's statement that people who call Abba Jan used to corner Ration during the earlier governments has now provoked opposition outrage. Here's how it's panned out. अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। UP Chief Minister Yogi Adityanath sets the tone for state elections that are just a few months away. At an event in Kushinagar to launch development projects, it was this one comment by the CM that stood out. क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। Adityanath's remarks provoked sharp reactions from his political rivals. Rahul Gandhi tweeted this jibe at the UP Chief Minister, saying how can someone who spreads hatred be called a yogi? SP Chief Akhilesh Yadav also did not hold back. भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। जब जनता पूछती है भाई स्कूल कहाँ है, मैं तो आम आदमी के रूप में आया था लखनऊ में स्कूल ढूंढने, भाई स्कूल बता दो कहाँ बनवाए। अब्बा जान की बात करेंगे, जरा ये भी तो बोले जो दफनाए गए थे गंगा नदी में वो कौन थे?
AIMIM chief Asaduddin Owaisi lashed out at Yogi Adityanath, saying the UP chief minister was spreading lies. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं। कितने घर दिए मुसलमानों को? आपने 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। Yogi Adityanath's comments kicked off a social media frenzy, with Twitterati posting pictures with their fathers using the hashtag Abbajan. Veteran actor Nasiruddin Shah also criticized the Abbajan narrative. When we have absurd statements like love jihad and now narcotics jihad being made by a priest who, I don't know under whose influence he said a thing like that. But this is meant to alienate. Or the Abbajan statement made by the Chief Minister of UP recently, which is beneath contempt. The BJP, however, chose to 100% back the UP Chief Minister. भाषा को भी हम धर्म के साथ जोड़कर, संप्रदाय के साथ जोड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो विपक्ष वास्तव में इसका दुरुपयोग करके ध्रुवीकरण कराना चाहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है। बिजली आ रही है क्या? कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की? For the BJP, Hindutva once again seems to be the core election plank. Apart from his Abba Jan jibes, Chief Minister Adityanath also made it a point to take credit for the Ayodhya Ram Mandir. अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना? क्या कांग्रेस रहती बनाती? क्या सपा रहती बनाती? क्या बहन जी रहती बनाती? क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते? Yogi Adityanath is facing one of his toughest political fights in Uttar Pradesh. The CM's latest remarks indicate that the Saffron Party is back to its tried and tested election formula as it tries to overcome the unexpected hurdles thrown up by the second COVID wave and farmer protests. Bureau Report, India Today. अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे।